A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy, and our new topic is subsidiary book. You know very well, our first step of accounting is to identification of the transaction. यानी सबसे पहले कोई भी transaction होता है business में तो will be first of all we identify the transaction. Identify of the transaction means we measured all the transaction in monetary terms because according to the money measurement principle we record only those transactions in the books of account which can be easily measured in the monetary terms, and thereafter we are talking about the recording steps, the second step of accounting process. In the recording process, all the transactions which are related to the business as well as which are measured in the monetary term, it will be recorded in the general first of all. But जो जनरल है ये जनरली स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है. इट मींस द साइज ऑफ द बिजनेस, द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन is less. In this situation, company prepared the general. But when the size of the business will increase or number of transaction will be high, so in this situation, company cannot be record all the transaction in the general. यानी इस situation में company सारे transaction को general में record नहीं कर सकती. Possible ही नहीं है कि आप यू कैन सी दैट अगर आप 10 ट्रांजेक्शन करते हो तो आप देखते हो कितनी जर्नल एंट्रीज क्रिएट हो जाती है 10, और उसको करने में कितना मेहनत लगता है, टाइम लगता है. दैट्स वाई कंपनी क्या करती है, सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करती है. सब्सिडरी बुक इज अ बुक which are used to record the transaction in the business in place of general. यानी जनरली स्मॉल स्केल बिजनेस फॉलो करते हैं, और जब जहां पे किसी कंपनी का बिजनेस बहुत हाई लेवल पे है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा है, तो सारे ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता. दैट्स वाई कंपनी प्रिपेयर द सब्सिडरी बुक. So this is the introduction part of the subsidiary book. Before the discussion, detailed discussion about the subsidiary book, first of all we take the some question from the general, because it is a query from your side. The please sir me provide me the some of the important questions which are related to the general, which are related to the trade discount and cash discount. So that's why before the starting the new topic, that is the subsidy book, let's we take the few questions from the trade discount and cash discount, and we will pass the journal entry from the question, and thereafter we will move to the our next topic, that is the subsidy book. So the question is, please note down in your copy. The question is, bought goods of the list price, bought goods of the list price rupees 1 lakh from Rani. The name of the seller is Rani, less 20% trade discount and 2% cash discount. It means हमने गुड्स परचेस किया जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी, दैट इज 1 लाख. कहां से परचेस किया, रानी से, जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल था. क्वेश्चन ये नहीं खत्म है, आगे इसमें क्लियरली लिखा है एंड पेड 40% बाई चेक. ये क्लाइमेक्स है. सिर्फ यहीं तक होता तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजिली, बट इसमें एक एडिशनल लाइन जोड़ दिया, एंड पेड 40% बाई चेक. दैट्स वाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है. Let's we take the one more question, one more transaction, that is a sold goods to Preeti. Sold goods to Preeti of rupees 2 lakh at 20% trade discount and 2% cash discount. 2% cash discount. Okay, received
50% by check, received 50% by check. You can see that first ट्रांजेक्शन में आपको पूरा पैसा नहीं पे किया, आपने सिर्फ 40% ही पैसा आपने पे किया, और जब आपने सेल किया है तो आपने सिर्फ कितना, जब आपने सेल किया है तो उस समय आपको केवल कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, ओनली 50% एंट्री पास करेंगे. So these are the two transactions. So one by one we pass the journal entries of both of the transactions. So let's we take the first transaction. The first transaction, as you can see that, bought goods of the list price of 1 lakh from Rani, less 20% trade discount, 2% cash discount. So यहाँ थोड़ा सा वर्किंग नोट आप लोग देखो. वर्किंग नोट मीन्स जहां पर आप थोड़ा सा वर्किंग कर सको. आपने गुड्स कितने का परचेस किया है? परचेस किया है 1 लाख रुपीस का, और उस पर सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं? 20% ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट अगर आप डिडक्ट करोगे परचेज में से तो कितना हो गया? 20,000. तो उसका मतलब आपने ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद कितने का परचेज किया? 80,000 रुपीज का, और उस पर 2% कैश डिस्काउंट है. ये बात हमेशा याद रखो, कैश डिस्काउंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द कैश ट्रांजेक्शन. लिसन केयरफुली. कैश डिस्काउंट अलाउड हो या चाहे कैश डिस्काउंट रिसीव, इट मींस चाहे आप गुड्स परचेस करो चाहे आप गुड्स सोल्ड करो, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन के लिए ही अवेलेबल होता है. अगर आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है तो उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा. जैसे हमने गुड्स परचेस किया 1 लाख रुपए का, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो वो सब पे एप्लीकेबल हुआ, लेकिन कैश ट्रांजेक्शन सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल होगा जितना हमने पे किया है. और हमने कितना पे किया है? 40% बाई चेक. तो यानी 80,000 में से हमने पे कितना किया है? ओनली 40%, यानी 32,000. यानी बाकी क्रेडिट कितना है अभी भी? दैट इज 48,000. यानी आपने 32,000 पे कर दिया है और 48,000 अभी भी क्रेडिट पे. तो डिस्काउंट जो है कैश डिस्काउंट, वो सिर्फ कितने पे एप्लीकेबल होगा? It will be applicable only on 32,000. So the cash discount will be cash discount at the rate of 2%. It will be charged on only 32,000. 00046. The cash discount will be a 640. I hope it is clear. This is a working note. And how it will be implemented in the journal entry? जर्नल एंट्री क्या पास होगी सर, ये बता दीजिए. तो जर्नल एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे पेमेंट किया है? चेक से. तो चेक से पेमेंट करते तो क्या लिखते हैं? टू बैंक. ओके. क्रेडिट पे भी तो है, कितने का क्रेडिट पे? 48,000. और जब भी हम कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं तो किसका नाम लिखते हैं? गिवर का नाम लिखते हैं. गिवर कौन है? रानी. हु इज द सेलर? रानी. आई एम द परचेजर. तो रानी टू बैंक, एंड यू नो वेरी वेल एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड और अलाउड. सेल के टाइम डिस्काउंट अलाउड होता है, सेल के टाइम क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड होता है, एंड एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट रिसीव. दैट्स व्हाई डिस्काउंट रिसीव विल बी क्रेडिटेड. अब थोड़ा सा ध्यान से देखना. परचेज कितने का था? 1 लाख. 1 लाख में से इनिशियली कितना माइनस कर देंगे? 20% ट्रेड डिस्काउंट. सो द वैल्यू इज 80,000. परचेस की वैल्यू कितनी होगी? 80,000. इट विल बी नोन एज द नेट परचेस. 80,000. उसमें से हमने पे कितना किया है सर? इमीडिएटली हमने पे किया 40%, यानी 32,000. तो जब आपने 32,000 पे किया तो आपके ऊपर रानी जी खुश होकर कितना रुपए आपको डिस्काउंट दे दी? 640. यानी आपने 32,000 पे करने की बात की, उसमें से तुरंत खुश होकर उन्होंने 640 आपको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया. इट मींस 32,000 में से 640 डिडक्ट हो जाएगा. सो इट विल बी टेकन एज द 0,693,1,3. दैट इज 31,360. 31,360. क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितना था? 48,000. एंड डिस्काउंट रिसीव इज 640. अब आप याद रखो, बैंक और डिस्काउंट रिसीव मिलाकर कितना होना चाहिए? 32,000 होना चाहिए. बाकी रानी का तो अभी उधार चल रहा है मेरे ऊपर, मतलब हमें रानी को कितना और देना है? 48,000 और देना है.
So the first entry regarding the first transaction, that is the purchase account debit to bank to Rani to discount receipt. सेकेंड ट्रांजेक्शन, द सेकेंड ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स टू प्रीति. हमने गुड्स सोल्ड किया प्रीति को 2 लाख रुपीस का, जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट था और 2% कैश डिस्काउंट था, और उसने मुझे इमीडिएट 50% कहा कि चेक से ले लीजिए, बाकी पैसा बाद में ले लीजिएगा. तो ठीक है, उन्होंने कह दिया बाकी हम बाद में ले लेंगे. तो कैश डिस्काउंट हम सिर्फ कितने पे देंगे? ओनली 50% पे ही देंगे. ट्रेड डिस्काउंट तो सब पे देंगे. तो हमने सेल कितने पे किया? हमने सेल किया 2 लाख रुपीस का, और 2 लाख पे इमीडिएट हमने क्या दिया उसको? ट्रेड डिस्काउंट. कितना परसेंट? 20%. 2 लाख का 20% दैट इज 40,000. और वैल्यू नेट सेल कितना आ गया? 1,60,000. दैट इज द नेट सेल. ओके, 1,60,000. उसने इमीडिएट कितना पे किया? 50%. तो पेड कितना किया इसमें? हमने पेड किया इमीडिएटली 50%. हमने पे नहीं किया, हमको तो रिसीव होगा ना भाई. हम जब सेल करेंगे तो हमें रिसीव कितना होगा? 50%. तो 80,000 हमें मिला. 80,000 अभी भी क्या है? क्रेडिट है, यानी इट विल बी टेकन एज द क्रेडिट सेल्स. तो जब आप डिस्काउंट की बात करेंगे, डिस्काउंट अलाउड होगा यहाँ पर, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल हम लोग डिस्काउंट अलाउ करते हैं. कितना डिस्काउंट अलाउड है? दैट इज 2%. कितने पे? जितना हमने रिसीव किया. रिसीव कितना किया? 80,000 का 2% उसको डिस्काउंट दे देंगे, यानी 160 रुपीज यहाँ पर उसका, सॉरी 1600 उसका क्या हो जाएगा? डिस्काउंट. यानी ये डिस्काउंट किसको मिला? प्रीति को. और हमने क्या किया? अलाउ. तो दैट्स व्हाई द एंट्री विल बी, द सेकंड एंट्री विल बी, सेल कर रहे हो. सेल क्या होता है? क्रेडिट. किसको सेल कर रहे हो? प्रीति. सो प्रीति अकाउंट डेबिट. उसने मुझे क्या दिया? चेक दिया. एंड यू नो वेरी वेल, जब चेक मिलता है तो वी राइट डाउन द चेक्स इन हैंड. और मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, सो दैट्स व्हाई डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड. एंड क्या किया हमने? सेल्स. सो द एंट्री विल बी प्रीति अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स. नेट सेल कितने का था? 1,60,000. इस 1,60,000 में 50% क्रेडिट है. 50% उसने पे किया, तो 50% कितना हुआ? 80,000. 50% क्रेडिट है. क्रेडिट को हम नेम से डील करते हैं. और उसने कितना पे किया? हमें इमीडिएटली 80,000 पे करने को कहा. उसने पे किया, यानी हमने 50% रिसीव किया, तो 50% में मैंने उसको डिस्काउंट कितना दे दिया? 1600. यानी 80,000 में मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया 1600. तो उससे हमें कितना पैसा मिलेगा? 78,400. यहां मैंने परचेस किया है और यहां हमने क्या किया? सेल किया. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ two entries which are related to the cash discount, trade discount, and in this question some of the amount is received through a check and some amount will be paid through a check. So इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि cash discount is only applicable for the cash transaction. It will not applicable for the credit transaction. जबकि ट्रेड डिस्काउंट हम सब पे अप्लाई करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट हम सिर्फ उतने ही पार्ट के लिए अवेलेबल करते हैं, उतने ही पार्ट के लिए चार्ज करते हैं जितना कैश रिसीव हुआ हो या जितना कैश पे हो. लेट्स वी मूव टू द next topic, that is the next chapter, is also known as subsidiary book. You know very well, at the beginning of today's video I was tell you that what is the meaning of subsidiary book. So please note down in your copy properly, what do you mean by the subsidiary book. The name of the chapter is books of original entry, that is a subsidiary book. So what is the introduction part of the subsidiary book? Please note down in your copy. For a small business, all its transaction in one book, that is जर्नल. यानी जब बिजनेस स्मॉल होता है, बिजनेस का स्केल छोटा होता है, तो उस सिचुएशन में हम सारे ट्रांजेक्शन को एक बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट इज अ जर्नल. बट
when business expends when business expands and the number of transactions becomes large in this situation all the transactions will be recorded in subsidiary book, that is subdivided of journal. It is also known as the subdivided. ओके, subdivided of journal, यानी जब हम जर्नल्स को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इट विल बी नोन एज अ सबडिवाइडेड. सो यू कैन सी दैट जब बिजनेस छोटा है तो हम सिर्फ जर्नल बना के काम चला लेते हैं, लेकिन जब बिजनेस बड़ा हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो सिचुएशन में सारे ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है. तो इस सिचुएशन में कंपनी करती क्या है, इस सिचुएशन में बिजनेसमैन करता क्या है कि हर जनरल को कई पार्ट में डिवाइड कर देता है, और उस पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाता है, सब्सिडियरी बुक. सो कौन कौन सी सब्सिडियरी बुक है, काइंड्स ऑफ subsidiary book oblique स्पेशल जर्नल्स, इसको हम लोग स्पेशल जर्नल्स भी बोलते हैं. द काइंड्स ऑफ सब्सिडियरी बुक इज कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, okay, and sales return book. Cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, and journal proper. So how many types of subsidiary book? The subsidiary book can be classified into the 6 book, that is a cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, and journal proper. So you can see that one by one I will take the book. The first of all we are talking about the cash book, thereafter we are talking about the purchase book, thereafter we are talking about the sales book, and आगे ऐसे ही चलता रहेगा आपका. So अगर आपसे कोई पूछे why we are recording the transaction in the subsidiary book, because of due to the large business, when the number of transaction of the business will increase, so in this situation we record all the transaction of the business in the subsidiary book. And how many types of the subsidiary book? There are basically 6 types of the subsidiary book, that is a cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, and journal proper. So one by one I will take the book. So the first book is cash book. So what is cash book? Please note down in your copy. The cash book is a book which are recorded all the cash transaction. Please listen carefully. What do you mean by the cash book? Cash book is a book which record all the cash transaction of the business. यानी जनरली कैश बुक में हम लोग करते क्या है कि इट इज अ स्पेशल बुक, इट इज अ स्पेशल जर्नल्स, इट इज अ स्पेशल जर्नल which is used to recording all receipts and
all payments. Which kind of receipt? All cash receipts and cash payments. Basically जो कैश बुक होता है एक ऐसी स्पेशल जर्नल होता है जिसपे हम सारी कैश रिसीप्ट्स और सारे कैश पेमेंट्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. So basically what is cash book? Cash book is a special book which is used to recording for all the cash transactions, that is the cash receipts and cash payments. तो कसम खा लेना है बिजनेस में जो भी कैश ट्रांजेक्शन होगा, कैश जिससे कैश इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, इन अदर वर्ड्स कैश रिसीव हो या कैश पेमेंट हो, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. तो सर कैश बुक में भी टाइप्स हैं? यस, कैश बुक में बहुत तरह के टाइप्स होते हैं. बेसिकली कैश बुक क्लासिफाई इनटू द 4 कैटेगरीज. इसको ध्यान से समझना और हम सिर्फ पहले आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे आपके कोर्स में सिर्फ कौन सी बुक पढ़नी. There are basically 4 types of the cash book. The first is simple cash book. Number second is double column cash book. Number 3 triple column cash book and petty cash book. So there are basically 4 types of the cash book: simple cash book, double column cash book, triple column cash book and petty cash book. सर इनमें डिफरेंसेस क्या है? सिंपल कैश बुक जो होता है इट इज अ बुक इन विच वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन. इट मींस इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम कई कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे कैश का और डिस्काउंट का, बैंक का और डिस्काउंट का, और कैश का या फिर बैंक का. ये बैंक और डिस्काउंट ये सब क्या है? सो बेसिकली सिंपल कैश बुक में सिर्फ हम कैश को प्रायोरिटी देते हैं. इफ एनी काइंड ऑफ कैश रिसीव्ड, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द सिंपल कैश बुक. इफ देयर एनी कैश पेमेंट्स, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द सिंपल कैश बुक. बट जब हम कैश के साथ साथ एक ही बुक में डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम डबल कॉलम कैश बुक फॉलो करते हैं. यानी डबल कॉलम कैश बुक इज अ कैश बुक विच रिकॉर्ड द कैश ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन एज वेल एज द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द डिस्काउंट, दैट इज द डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. तो उसमें 2 कॉलम लिखा है ना, डबल कॉलम. डबल कॉलम का मतलब क्या है? या तो कैश और डिस्काउंट दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, बैंक डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे, या कैश और बैंक को. डबल का है ना, डबल मतलब 2 लोग को मैक्सिमम अलाउ कर सकते. ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, इसमें हम तीनों को रिकॉर्ड करते हैं. इसमें हम लोग क्या करते हैं, तीनों को. इट मींस कैश को भी रिकॉर्ड करते हैं एक ही बुक में, एक ही बुक रहती है, एक ही कैश बुक रहती है, उसमें कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं और डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं. ओके, so this is a triple column cash book. Triple column cash book is a cash book in which we record cash transaction, banking transaction and transaction related to discount at one place. डबल कॉलम में क्या था, पेयर बनाते थे और उस पेयर वाइज हम उनको अलाउ करते थे कि एक ही कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाए. ट्रिपल कॉलम में क्या है, तीनों को एक ही कैश बुक में रिकॉर्ड करते. सर इट इज अ पॉसिबल? यस, इट इज अ पॉसिबल. And thereafter the next one is the petty cash book. Petty cash book is a cash book which is used to the small payment, recording for the small payments. You know very well business में कई small payments होते हैं और वो highly recurring nature के होते हैं, highly recurring nature के, मतलब उनको रिकॉर्ड करने के लिए अलग से बुक बनाया जाता है. यानी कि petty cash book is a cash book which record the small payment of the transaction which are incurred at a highly recurring period. Means business में पर डे के हिसाब से देखो तो उनका स्टेशनरी का कॉस्ट है, पर डे स्टेशनरी खर्चा होता है ऑफिशियल काम में, रिफ्रेशमेंट का खर्चा होता है. अगर कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या उसे ऑर्डर मंगाना है, ऑर्डर भेजना है, तो उसमें पोस्टल चार्जेस लगते हैं. सो
बहुत बिजनेस में कई ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना जो बहुत हाईली रेकरिंग नेचर के होते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है किसी चीज का बार बार होना, रेकरिंग होना। इट मींस कोई ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो कम रेकरिंग नेचर के होते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो हाईली रेकरिंग नेचर के होते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन हाईली रेकरिंग नेचर के होते हैं वो कैश से रिलेट करते हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द पीटी कैश बुक। So PT cash book records the small payment related to the highly recurring nature, the items which are related to the highly recurring nature जिनको हम बार बार पे करते हैं, जैसे स्टेशनरी हुआ, रिफ्रेशमेंट का खर्चा हुआ, पोस्टेज टेलीग्राम हुआ। So this will be the transaction will be recorded in the PT cash. So basically the cash book can be classified into the four categories: simple cash book, double column cash book, triple column cash book and PT cash book. Okay, so ये तो हो गया, this is a classification of the cash book. After discussing the classification of the cash book, I will give you the important information, that is which types of the cash book are included in your syllabus. इतने तो कैश बुक होती हैं, बट आपके सिलेबस में कौन कौन सी कैश बुक है? सो अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस फॉर द सेशन 2020-2021, कैश बुक का सिर्फ आपको कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है? दैट इज अ सिंपल कैश बुक आपको पढ़ना है। डबल कॉलम का सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ना है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपको नहीं पढ़ना है, और पीटी कैश बुक आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो बेसिकली अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में कैश बुक में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? कैश बुक में पहले पढ़ना है दैट इज अ सिंपल कैश बुक। Please note down in your copy. Second, double column cash book having cash and bank column. Listen carefully. That is double column cash book having cash and बैंक कॉलम। यानी आपको कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट कॉलम को डील नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक कॉलम को डील करना है एक सिंगल कैश बुक में। और ट्रिपल कॉलम तो आपके कोर्स में है ही नहीं। और चौथा है, थर्ड है, वो है पीटी कैश बुक। सो इन द कैश बुक सिलेबस आपको तीन तरह की कैश बुक पढ़नी है, दैट इज सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम, एंड नेक्स्ट इज अ पीटी कैश बुक। So first of all, we are discussing, we will move to the simple cash book. So please note down in your copy what is simple cash book and what is the format of simple cash book. As you see the name of the simple cash book, simple cash book is a simple cash book. First of all, simple cash book is also known as the single column cash book. Please note down, it is also known as the single column cash book. Okay, the first very important part of the simple cash book. Simple cash book is also known as the single column of the cash book. It means it is a book in which only it records only cash transaction, that is cash receipts and cash payments. In short way, we can say that what is simple cash book? Simple cash book is also known as the single column cash book. तो अगर single column cash book को थोड़ा नरेट करो तो क्या निकलेगा? मतलब it means the cash book which have only single column of, and single column किसका होगा? Only cash का. It means this book only records the cash transaction. इसमें ना हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना डिस्काउंट से रिलेटेड कोई चीजें रिकॉर्ड करते हैं। यानी सिंपल कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, दैट इज अ कैश रिसीप्ट, दैट इज अ कैश पेमेंट। ओके, इसका फॉर्मेट क्या होता है सर वो बता दो। तो फॉर्मेट ऑफ द कैश सिंपल कैश बुक इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द नेम, दैट इज सिंपल कैश बुक। अगर आप सिंपल कैश बुक बनाओगे तो
तो आपको लिखना पड़ेगा टॉप में सिंपल कैश बुक हेडिंग की तरफ। फिर उसके बाद लेजर अकाउंट बनता है ना, उसी तरह से इसमें भी दो साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड विल बी नोन एज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी नोन एज द क्रेडिट साइड। कितने कॉलम्स होते हैं, तो बेसिकली लेजर की तरह ही आप उसको ड्रॉ कर देना। जैसे मैंने आपको लेजर बताया था, तो फॉर्मेट क्या था लेजर का, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और उसके बाद था डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सर सेम एज इट इज लेजर, नो, थोड़ा तो चेंजेस होगा ही। इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल कैश बुक। इसमें डिफरेंसेस क्या होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल कैश बुक, तो उसमें दो माइनर कॉलम इंक्लूड किए जाते हैं, दो माइनर कॉलम बिफोर द अमाउंट ऑन द ईच साइड, दैट इज अ डेबिट साइड एंड दिस इज अ क्रेडिट साइड। ओके सर, ये दो कॉलम का नाम क्या है? फर्स्ट कॉलम इज भैया वाउचर नंबर, सेकंड इज अ लेजर फोलियो। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, इसको आप अपोजिट भी कर सकते हैं, लेजर फोलियो वाउचर नंबर, वाउचर नंबर लेजर फोलियो। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक। डेबिट के आगे प्रीफिक्स यूज करते हैं वही टू, और क्रेडिट में भी पर्टिकुलर्स में प्रीफिक्स यूज करते हैं बाई। इज दैट क्लियर? डेट वही तरीका है लेजर की तरह लिखने का, ईयर, मंथ एंड डेट, एंड डेबिट साइड इज ऑल्सो डेट, ईयर, मंथ एंड डेट। ओके सर, इसमें रिकॉर्ड कैसे करते हैं? इसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है? नहीं, क्योंकि यू नो वेरी वेल डायरेक्टली इसमें जनरल बना, डायरेक्टली इसमें बिना जनरल की हेल्प से हम लोग कैश बुक बनाते हैं। यानी इसमें आपको फॉलो नहीं करना है। क्या नहीं फॉलो करना है? जनरल को फॉलो नहीं करना है, आपको डायरेक्टली सिंपल कैश बुक बनानी। तो डेबिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश रिसीव, बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट, यू नो वेरी वेल कैश इज अ रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या था? व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अगर आएगा so it will be debited, and अगर कैश जाएगा तो it will be a credited. So this is the format of cash book. In the next class we will discuss the practical problem related to the simple cash book. आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।